Hello students, here is lesson number 13. Name of the lesson is Pythagoras theorem. Okay, what is Pythagoras? It is name of the mathematician. Okay, a great mathematician, Pythagoras. Okay, and whatever the theorem he put forth, okay, for us. Okay, so that theorem is known as Pythagoras theorem. Pythagoras ka theorem. Okay, let us recall point is there then. Okay, the first point is a right angle triangle. Okay, this Pythagoras theorem is related with right angle triangle. Okay, right angle triangle means a triangle in which one angle out of the three angles, one angle is right angle. Okay, तीन एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. ओके, सच ट्राइंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्राइंगल. और ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल से ही रिलेटेड है, बाकी दूसरे किसी ट्राइंगल को वो एप्लीकेबल नहीं है. Okay, then we know that a triangle with one right angle is called a right angle triangle. This we have learned in standard 6. Okay, कि तीन एंगल में से एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस. और उस 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस. ओके, देखो यहां पर angle B is 90 degree, so side AC is called hypotenuse. Here angle L is 90 degree, so therefore side MN is called hypotenuse. Here angle Y is measures 90 degree, यहाँ पर साइन दिया है ना 90 डिग्री का. Okay, so therefore side XZ is called hypotenuse. Okay, then here point is given. Write the name of the hypotenuse of each of the right angle triangles shown below. ओके, हाइपोटेनस का नाम लिखना है. कहां लिखना है? नीचे दिया है. ओके, तो वहां पर द हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका हाइपोटेनस क्या है? एसी. ओके, हियर इन दिस ट्राइंगल एलएमएन व्हाट इज द हाइपोटेनस? एमएन. इन दिस ट्राइंगल एक्सवाईजेड व्हाट इज द हाइपोटेनस? एक्सजेड. राइट. Now let us move ahead to the point Pythagoras theorem. Okay, what is this Pythagoras theorem? First, let us understand something about Pythagoras. Pythagoras कौन था? Pythagoras was a great Greek mathematician. Okay, he was from Greece of the 6th century. 6th century. Okay, means how many years before? Just you can imagine. Okay, 6th century. Now this is 21st century is going on. Alright, BCE, before Christ era. That also before Christ era. Okay, then he made important contributions to mathematics. His method of teaching mathematics was very popular. He trained several mathematicians. Okay, वो खुद तो इंटेलिजेंट था ही, उसने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है मैथमेटिक्स में. Okay, so he was a great mathematician. He was from Greek. Okay, people of many countries had long known of a certain principle related to the right angle triangle. It is also given in the book called Shulva-Sutra of ancient India. As Pythagoras was the first to prove the theorem, it is named after him. This theorem of Pythagoras, okay, ये बाद में देखते हैं. Okay, so many of the people, ऐसा नहीं कि only Pythagoras, but like this many of the mathematicians, they are well known for this. Okay, for the theory of right angle triangle. Okay, वो आपने इंडियन मैथमेटिशियन ने भी ये किया, लिखा है, बहुत कुछ किया है उस पर. ओके, तो उसको एक वो बुक को नाम दिया है शुल्व सूत्र. ओके, इवन आवर इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस. ओके, बट लेकिन पाइथागोरस का नाम क्या क्यों दिया? बिकॉज पाइथागोरस वॉज द फर्स्ट टू प्रूव द थियरम. ओके, सबसे पहले ये थियरम किसने प्रूव किया? तो पाइथागोरस ने. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस थियरम इज नेम्ड आफ्टर हिम, सो इट इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थियरम. ओके, दिस थियरम ऑफ पाइथागोरस स्टेट्स दैट, ओके, क्या बोलता है ये थियरम? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वेयर मीन्स उसकी जो लेंथ है उसका स्क्वेयर. ओके,
द स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, वो इक्वल होता है, किससे इक्वल होता है? टू द सम यानी एडिशन, किसकी एडिशन? ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू देयर इन द फिगर. Suppose this is triangle ABC. It is right angle triangle. Okay, what does the theorem tells that? The hypotenuse ka square means this AC square. Length of AC square. Length of AC square is equal to, ये किससे इक्वल आता है? तो ये जो दोनों साइड है ना बाकी, यानी हम लोग इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं. ओके, तो इन दोनों का स्क्वायर लेकर उनकी एडिशन करनी है. ओके, सो दिस इज लेंथ ऑफ बीसी स्क्वायर, सो दिस इज सपोज लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर. तो इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन जितनी आएगी उतनी ही एसी स्क्वायर की वैल्यू आएगी. ओके, मीन्स हियर वी अंडरस्टैंड दैट एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. राइट, नाउ लेट अस कम टू आवर पॉइंट. नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन. क्या एक्टिविटी करनी है? ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड एज शोन इन द रफ फिगर्स बिलो. मेजर द थर्ड साइड, वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम. ओके, अब देखो व्हाट इज दिस लेंथ गिवन? 3. दिस इज गिवन 5. ओके, then we have to measure the length of AB. Length of AB is, how much it is? Here it is given 2. This is given 2. This is given almost 2.7 something. Okay, तो ये इससे मैच नहीं हो रहा है. ओके, तो ठीक है, उन्होंने ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं दिया है. दिस इज द रफ फिगर. ओके, अगर आप लोग ये मेजर यूज करके अगर आप लोग निकालते हो नोटबुक में, ओके, यू विल फाइंड दैट दिस साइड कम्स 4. ओके, अगर ये 3 सेंटीमीटर, दिस 5 सेंटीमीटर, देन दिस विल कम 4 सेंटीमीटर. ओके, ऐसे अगर ये ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल निकालते हो जिसका बेस 6 सेंटीमीटर है, जिसका हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है, तो हियर दिस यू विल गेट 8 सेंटीमीटर. ओके, दिस व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस, बिकॉज दिस इज द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस. अब देखो 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25. 3 का स्क्वायर कितना है? 9. 4 का स्क्वायर कितना है? 16. देखो 16 प्लस 9 25. ओके, यहां पर 10 का स्क्वायर कितना है? 100. 6 का स्क्वायर 36. 8 का स्क्वायर 64. 64 प्लस 36 क्या आंसर आता है? 100. तो 100 इज इक्वल टू 100. Okay, the same way even if you do this for this triangle also. Okay, तो ये 17 का स्क्वायर जो कुछ भी है, 15 का स्क्वायर जो कुछ भी है, ओके, वैसे इस साइड का स्क्वायर जो लेना है, इन दोनों का एडिशन और इसका स्क्वायर सेम आएगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस और पाइथागोरस थ्योरम. ओके, ऑन नेक्स्ट पेज लेट अस लर्न एक्टिविटीज. देयर हमें क्या सीखना है? विथ रेफरेंस टू द फिगर अलोंग साइड, ये जो फिगर दी है लेफ्ट साइड में, ओके, ट्राइंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल बी इज गिवन 90 डिग्री. ओके, सो दिस इज द साइड बी सी इज कॉल्ड बेस, सेगमेंट ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल एंड ए सी इज द हाइपोटेन्यूज. ओके, ये 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके अपोजिट के साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. ओके, देन अलोंग साइड the theorem of Pythagoras can be written as follows. Okay, means with reference to this figure, how we can write the theorem? In triangle ABC, if angle B is right angle, then length of AC square, hypotenuse square, length of AC square is equal to length of AB square plus length of BC square. This is called the theorem of Pythagoras. Okay, इसका फायदा क्या है? ओके, अगर हम लोगों को हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी है, बेस दिया है, तो हम लोग हाइट निकाल सकते हैं. अगर हाइट मालूम है, बेस मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल सकते हैं. ओके, अगर हाइट मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो बेस की लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम. ओके,
Generally, in a right angle triangle, one of the sides forming the right angle is taken as the base and the other as the height. Okay, जो भी राइट एंगल है उसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले जो वर्टेक्स होता है, ओके, उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती है, ओके, ये दोनों साइड्स, तो एक को हाइट कंसीडर किया जाता है और एक को बेस कंसीडर किया जाता है. ओके, अगर हम लोग इसको हाइट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको अगर हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो फॉर्मूला वो थ्योरम कैसे बनेगा? सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन. ओके, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, अब ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करने के लिए कुछ एक्टिविटीज दी है. ओके, यू मस्ट बी हैविंग द टेक्स्ट बुक. ओके, अब देख लो इससे, ओके, और समझ लो पूरी तरह से. ओके, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया है. ओके, इवन ऑन द नेक्स्ट पेज ऑल्सो, टिल हियर इट गेट्स ओवर. देन आफ्टर दैट लेट अस डिस्कस पॉइंट इज देयर. ओके, without using a protector we can verify every angle of a vacant quadrilateral in figure 1 is a right angle. Okay, अब इसके लिए क्या एक्टिविटी दी है? एक शीट लेना है. ओके, ऑन दैट ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, वेयर द हाइट इज 3 सेंटीमीटर, बेस इज 4 सेंटीमीटर. ओके, एंड दिस हाइपोटेन्यूज what it comes in first figure we have seen, it comes 5. Okay, so this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, this is 5 centimeter. Okay, हमें कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है ये पाइथागोरस थ्योरम बराबर है कि नहीं. ओके, देन व्हाट इट सेज, थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना आता है? देखो 5 का हमने बनाया 5 का स्क्वायर, यानी ऐसे 5 सेंटीमीटर, ऐसा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 का स्क्वायर तैयार. ओके, उसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद कितने स्क्वायर मिले हमें? 25. तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 स्क्वायर. ये देखो 25 स्क्वायर. ओके, 4 का स्क्वायर मिलेगा 16, राइट. वैसे 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 9. ओके, सो 9 प्लस 16 exactly 25. Okay, so here the Pythagoras theorem gets verified. Okay, one more example is solved here downside. Solved example is there. Go through it. Exactly how to use the theorem of Pythagoras. Okay, this I am going to explain it in the practice set. Okay, तो यहां पर भी आप लोग go through it. Okay, now I will directly move to the practice set. On next page we have practice set 48. Okay, in that how many questions are there? Question number 1, 2, 3, 4. Okay, question number 1 में 3 example है, and then question number 2, 3 and 4. Okay, all these will be solved one by one. Okay, question number 1 देखो क्या है question. In the figures below find the value of x. ये जो 3 फिगर है उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करनी है. ओके, और यहाँ पर भी हाइट ही फाइंड आउट करनी है. नहीं तो हाइट बोलो, नहीं तो बेस बोलो, कुछ भी बोलो. ओके, तो लेट अस कैलकुलेट. इन क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल, सच टाइप ऑफ डायग्राम इज शोन. ओके, एंगल M is shown 90 degree. Okay, height is given 7. Here base is given 24. Here this hypotenuse is given x. Okay, we have to find out the value of x, right? Now in triangle LMN, triangle का नाम क्या है? LMN, right? Measure of angle M is equal to 90 degree. Okay, this information is given in the example. Therefore, using Pythagoras theorem, using Pythagoras का theorem हम लोग यूज कर रहे हैं. Okay, what? Therefore, length of hypotenuse square means length of ln square is equal to length of lm square
प्लस लेंथ ऑफ एम एन स्क्वेयर. क्या ये हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइट स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, नहीं तो बेस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर, दोनों कैसा भी करो सेम आता है. देयरफॉर व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल एन, इट इज गिवन एक्स, सो देयरफॉर एक्स स्क्वेयर राइट is equal to what is the length of LM given, it is 7 square, plus what is the length of MN, it is given 24, so 24 square right. Therefore x square is equal to 7 का स्क्वायर कितना है 49, ओके, एंड 24 का स्क्वायर कितना कितना है 576, करेक्ट. अब दोनों के स्क्वायर की अगर एडिशन करते हैं 49 प्लस 576, आंसर मिलता है 625. ये 625 किसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, ओके. लेकिन हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी मैंने इसका क्या लिया है एक्स स्क्वायर का एक्स लिया है, मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, ओके. अब आप लोगों को 625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है, ओके. 6 स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन किया है हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, ओके. क्या है 625 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 25, ओके. उसको यूनिट नहीं दिया है, ओके, ओनली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 25, राइट. लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 2, ओके. सेकेंड एग्जांपल, दिस वे डायग्राम इज गिवन, ओके. In that triangle PQR, in that measure of angle Q is given 90 degree, correct. So therefore what things are given in triangle PQR, measure of angle Q is equal to 90 degree, okay, correct. So therefore using Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem? Hypotenuse square means PR square, length of PR square is equal to base square means length of PQ square plus length of height means QR square, right. What is the length of PR given? PR is given 41 square. अब यहां पर क्या दिया है हाइपोटेनस की लेंथ दी है, ओके. पहले एग्जांपल में हमने हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड आउट किया, अब यहां पर हाइपोटेनस की लेंथ दी है, ओके. इज इक्वल टू व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ गिवन, इट इज 9 स्क्वेयर, प्लस व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR गिवन, इट इज गिवन x, तो उसकी जगह पर x स्क्वेयर लिखो, राइट. So, therefore, what is the square of 41? 41 का स्क्वायर है 1681 is equal to 9 का स्क्वायर है 81 plus x square. Okay. Now you can solve this. You are much habitual to solve the equations with one variable. Okay. 6th standard में सिखाया आप लोगों को, तो बस ऐसे ही करना है. So therefore 1681, ये प्लस 81 अगर इस साइड में लिया तो वो बनता है माइनस 81 इज इक्वल टू यहां पर क्या बचा एक्स स्क्वेयर, राइट. सो देयरफॉर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1681 माइनस 81 मिलता है ओनली 1600, ओके. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1600 का स्क्वेयर रूट क्या है 40, ओके. मल्टीप्लीकेशन करके देखो 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 1600, 4 4 जा 16 and 00, okay. So therefore what is the value of x? X is equal to 40, correct. Now let us move to example number 3, okay. What diagram is given? फिगर कैसे दी है, ऐसा ट्राइंगल दिया है, okay. This angle is shown 90 degree, DEF,
Okay, ED is given X, DF is given 8 and EF is given 17. Alright, now from this we have to find out the value of X. यानी क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, ओके, हाइट दी है, बेस निकालना है हमें. ओके, इस ट्रायंगल को ऐसा ये करो, ऐसा ऊपर करो, जो नीचे किया है ऐसा ऊपर करो, ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज. राइट, देयरफॉर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, DEF, DEF, measure of angle D is equal to 90 degree. Okay, so therefore EF is hypotenuse. EF क्या हो गया, hypotenuse हो गया. Okay, so therefore using Pythagoras theorem, what hypotenuse square means length of EF square is equal to base square means x square plus 8 square. Right, EF square is equal to x square plus 8 square. What is the length of EF, sorry 8 square, यहां पर ठीक है, यहां पर साइड का नाम लिखना चाहिए था, यानी ED square plus DF square. Okay, that you can manage it. So therefore what is the length of EF given, 17 square. Therefore 17 square is equal to x square plus 8 square. Okay, what is the square of 17, it is 289. 289 is equal to x square plus 8 का स्क्वायर कितना है, 64. ओके, अब ये प्लस 64 लेफ्ट साइड में लेना है हमें. सो देयरफॉर 289 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, therefore 289 minus 64, what is the answer, it is 225 is equal to x square. So therefore x is equal to square root of 225 is equal to 225 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 15. क्या स्क्वायर मिलता है, 15. So therefore x is equal to 15. Right, now let us move to question number 2. ओके, यह क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, हमें डायग्राम निकालनी होगी उसकी. राइट एंगल ट्राइंगल PQR, मेजर ऑफ एंगल P इज 90 डिग्री, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 24, लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR. ओके, ओके, हियर इज राइट एंगल ट्राइंगल इज ड्रॉन. इन क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, मेजर ऑफ एंगल P इज 90 डिग्री, दिस P इज गिवन 90 डिग्री. ओके, फर्स्ट दैट लेटर वी हैव टू फिक्स. ओके, देन PQ इज गिवन 24, PQ इज गिवन 24 and then PR is given 10 centimeter, PR is given 10 centimeter. Find the length of QR, QR की लेंथ फाइंड आउट करनी है. ओके, तो QR को हम लोग बोलते हैं X. ओके, राइट. सो इन ट्राइंगल PQR, measure of angle P is equal to 90 degree. So therefore length of QR is hypotenuse. Length of QR is hypotenuse. QR क्या हो गया, hypotenuse हो गया. So therefore using Pythagoras theorem, पाइथागोरस का थ्योरम अगर यूज किया, ओके, सो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस लेंथ ऑफ QR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ PR स्क्वायर. करेक्ट, QR स्क्वायर मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ, 24 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या है, 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो उनके एडिशन कितनी आती है, 676. ये 676 क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए.
So therefore x is equal to square root of 676. Okay, 676 का स्क्वायर रूट कितना आता है 26. ओके, सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर. ओके, तो सो देयरफॉर x is equal to 26 means the length of segment QR is equal to 26 centimeter. सेंटीमीटर में दिया है, सॉरी. ओके, so 26 centimeter. All right, now let us move to example number 3. Question number 3. In a right angle triangle LMN, measure of angle M is equal to 90 degree. Then length of LM is equal to 12 centimeter. Length of LN is equal to 20 centimeter. Find the length of segment MN. Okay, वैसे जस्ट जैसा ये एग्जांपल सॉल्व किया वैसे ये सॉल्व करना है. Okay, here is a right angle triangle drawn. In that, measure of angle M is 90 degree. So here point M is fixed here. Okay, more what things are given? Length of LM is equal to 12 centimeter. LM is equal to 12 centimeter. Then length of LN is equal to 20 centimeter. This LN is given 20 centimeter, means hypotenuse, length of the hypotenuse is given now. Okay, so they are same information be right. Okay, in triangle LMN, measure of angle M is equal to 90 degree. Okay, then length of LM is equal to 12 centimeter. Then hypotenuse length is given 20 centimeter. Okay, what we have to find out? LM, sorry, this. So therefore length of MN is equal to what? Okay, यहाँ पर हम लोग करना let length of MN is equal to x. इसको हम लोग क्या मानते हैं? x. Okay, so therefore using Pythagoras theorem, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते हैं. क्या है पाइथागोरस का थ्योरम? ओके, वो थ्योरम ही लिखते हैं डायरेक्ट. आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, ये पाइथागोरस का थ्योरम. यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं. ओके, हाइपोटेन्यूज इज एल एन. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट क्या है एल एम. सो लेंथ ऑफ एल एम स्क्वेयर प्लस बेस क्या है एम एन. सो लेंथ ऑफ एम एन स्क्वेयर. राइट. ओके, नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल एन गिवन 20 स्क्वेयर इज इक्वल टू एल एम की लेंथ क्या दी है 12. सो 12 स्क्वेयर प्लस एम एन इट इज वी हैव कंसिडर एज एक्स और उसका स्क्वेयर. What is the square of 20? It is 2 2s are 4 and 2 0 400. 12 का स्क्वायर क्या है 144 प्लस एक्स स्क्वायर. राइट, देयरफॉर 400 ये प्लस 144 अगर लेफ्ट साइड में लिया तो माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, सो देयरफॉर 400 माइनस 144 आंसर क्या मिलता है 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू चाहिए तो रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 256 और वो मिलता है हमें 16 सेंटीमीटर. ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन. सो आंसर द लेंथ ऑफ segment MN is equal to or is 16 centimeter. Right, let us move to question number 4. Question number 4 is
the top of a ladder of length 15 meter, okay, reaches a window 9 meter above the ground. Okay, अब ये कैसा रहेगा? सपोज ये ग्राउंड है, ओके, यहां से लैडर फिक्स की है, ओके, लैडर फिक्स की. द टॉप ऑफ अ लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर, लैडर की लेंथ कितनी है? 15 मीटर. ओके, अब विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड, यहां से ग्राउंड से ये विंडो कितनी है? 9 मीटर. ओके, ग्राउंड. देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर? तो ये वॉल और लैडर का बेस, ये डिस्टेंस कितना है? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, क्योंकि हमें मालूम है ग्राउंड और वॉल में 90 डिग्री का एंगल होता है. ओके, लेट अस ड्रॉ द फिगर. यहां पर बहुत छोटी फिगर निकाली है, मैं सेम फिगर नोटबुक पर निकालता हूं. ओके, here is the figure. What is expected? Okay, top of the, suppose this is a ladder. Okay, let this point be A, this B, and this one is C. Okay, ये जो ladder है C A. Okay, this is the base of the ladder, this is the top of the ladder, this is the wall. Okay, यहाँ से यहाँ तक window है. Okay, and this is the distance between the base of the ladder and base of the wall. Okay, the height of the ladder is given. The top of the ladder of length 15 meter. This is, it is given 15 meter. Okay, a window 9 meter above the ground. यहां से यहां तक दिया है distance 9 meter. Okay, the question is what is the distance between the base of the wall? Okay, तो ये distance हम लोग क्या consider करते हैं? X. Right? So therefore this triangle we have mentioned as triangle ABC. So therefore in triangle ABC, this, now this angle is 90 degree. Measure of angle B is equal to 90 degree. Alright. So therefore now length of AC is equal to 15 meter. Length of AB is equal to 9 meter. Correct. So therefore using Pythagoras theorem, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके क्या मिलेगा हमें? व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस? इट इज लेंथ ऑफ AC स्क्वेयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB स्क्वेयर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वेयर. AC स्क्वेयर कितनी है? 15 स्क्वेयर इज इक्वल टू AB मीन्स 9 स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर मीन्स X स्क्वेयर. सो देयरफॉर व्हाट इज द स्क्वेयर ऑफ 15? 15 का स्क्वायर है 225 इज इक्वल टू 9 9 81. सो देयरफॉर 225 ये प्लस 81 अगर इधर लिया तो माइनस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. ओके, सो देयरफॉर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इनका सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या है? 225 माइनस 81, आंसर यू विल गेट 144. राइट. ओके, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 144. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट क्या है? 12, और उसका यूनिट मिलेगा 12 सेंटीमीटर. ओके, व्हाट इज दिस 12 सेंटीमीटर? ओके, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर. सो देयरफॉर डिस्टेंस between wall and ladder is 12, sorry, not sorry, here it is meter. Okay, it is 12 meter. Okay, 12 meter. Okay, now here our practice set number 48 gets over. I will come back with the next video with practice set number 49. Okay, and next point is Pythagorean triplet. Okay, till then, thank you.